میں آپ کو بتاتا چلوں 2 مہینوں کا میں صرف نام لوں گا، میں اس کی ڈیٹیل نہیں بتاؤں گا، ناراضگی بہت ہوتی ہے، صرف مہینے کا نام لوں گا سمجھ آ جائے گی۔ ہوتا کیا ہے کہ عمران خان کی حکومت کو جب ہٹانے کا فیصلہ ہوتا ہے تو اس سے پہلے جون جولائی میں ایک این کیمرہ بریفنگ دی جاتی ہے، اور اس میں جو تھے وہ ذرا وہ پریزنٹیشن یاد کرائے کہ وہ پریزنٹیشن دیے کس کی طرف سے تھے، اور اس میں امریکہ کے ساتھ زیادہ تعلقات کیسے رکھنے ہیں، یا ہم نے کس بلاک میں جانا ہے، اور امریکہ کی یہاں کے جانے سے کے بعد کیا کیا چیزیں ہوگی۔ عمران خان کو ایبسولوٹلی ناٹ نہیں کہنا چاہیے، وہ تو اسے امریکہ کو اور ان سب کو ناراض کر دیتے ہیں۔ اب ہوا کیا کہ ان دنوں میں جب یہ ہم تیاری کر رہے تھے تو ان دنوں میں اڈے دینے کی ایک خبر میں بین الاقوامی جریدے میں خبر آتی ہے کہ امریکہ نے اڈے مانگے ہیں، حکومت نے نہیں، کسی اور نے کمٹمنٹ بھی دی ہے، اور پھر اس کے ایک ہفتے بعد یا 2 دن بعد عمران خان سے انٹرویو ہوتا ہے اور عمران خان کو کہتے ہیں کہ کیا آپ امریکہ کو اڈے دیں گے؟ خان صاحب کہتے ہیں کہ ایبسولوٹلی ناٹ۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ یہ تمام چیزیں جو منظرنامہ تھا وہ آپ کے سامنے آ گیا کہ کس طرح بین الاقوامی طاقتیں، امریکہ، ہینڈلرز، اعلی کار، سہولت کار، یہ سارے میسر آئے اور عمران خان کی حکومت ہٹائی گئی۔ اب جب عمران خان کی حکومت ہٹائی گئی تو خان صاحب نے پہلے مہینے میں بار بار آپ کو کہا، اور اس سے پہلے ایک اور چیز آپ سنیں، اکتوبر بھی بہت اہم ہے اس ریجیم چین آپریشن میں، کہ اس میں بھی کچھ فیصلے ہوئے تھے اور کسی کے طاقتور شخص کے کچھ دورے بھی ہوئے تھے اور اس میں بھی کوئی کمٹمنٹس ہوئی تھی۔ تو پھر جب عمران خان کی حکومت ہٹائی گئی تو خان صاحب نے پہلے مہینے میں کہا کہ یہاں پہ حالات اکنامک بھی آپ کے خراب ہو سکتے ہیں اور یہاں پہ امن و امان کی بھی۔ مئی میں پہلی دفعہ، اور میں موجودہ صورتحال کی طرف آ کے اب بات ختم کر دوں گا، مئی میں اس طرح ہوا کہ جب ہم نے دیکھا کہ کچھ ان کی سرگرمیاں ہو رہی ہے تو پہلی دفعہ میں نے اس کے اوپر بات کی تو سب نے مذاق اڑایا کہ یار اب تو ہر چیز ٹھیک ہے، یہ کہاں سے بات کر رہے ہیں، ضرورت کیا ہے اس کو بات کرنے کی۔ تو پھر جون جولائی میں یہ ہوا کہ ہمیں کچھ سرگرمیاں نظر آئی اور ہم نے 4-5 سوال پوچھے۔ سوال اس لیے پوچھے کہ پاکستان میں کوئی بھی آپ بات کرو نہ ملک کی مفاد کی بھی، سیزن چلتا ہے کہ کب کس کے اوپر غداری کے فتوے لگنے ہیں، کس کے اوپر بغاوت کے فتوے لگنے ہیں، ایک سیزن چل رہا ہوتا ہے۔ تو ایک سیزن چل رہا تھا ہمارا، تو لہٰذا میں نے صرف سوال پوچھے۔ سوال پہلا یہ پوچھا کہ یہ بارڈر پہ تو باڑ لگا ہے، تو جب باڑ لگا ہے تو وہاں پہ سیکیورٹی کس کی ذمہ داری ہے، اور اگر باڑ ہے جس پہ ہم نے اربوں روپے لگائے ہیں تو یہ سرگرمیاں کہاں سے ہو رہی ہے، اور کیا جولائی میں آپ کے امپورٹڈ حکومت کا اور کسی اور کا کوئی وزٹ ہوا ہے افغانستان میں، اگر ہوا ہے تو کیا کمٹمنٹس ہوئے ہیں۔ معصومانہ 5-6 سوالات پوچھے، ان سوالات کا جواب دینے کی بجائے میرے اوپر ایف آئی آرز بھی ہوئے، غداری کے فتوے بھی لگے۔ سوال ایک سے پوچھتا ہوں، دوسرے کے حلیے میں بندے بھی سامنے آ گئے، دوسرے سے سوال پوچھنے لگا تو یہ سامنے آ گئے، یہاں تک کہا گیا کہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ انٹیریئر منسٹر نے ٹی وی پہ آ کے، اور میں کیوں جھوٹ سے شروع کیا تھا، ان کے جھوٹ سے، اور ان کے جھوٹ پہ اب میں ختم کرنے جا رہا ہوں کہ یہ جنگ جب جھوٹ پہ ہو، جب آپ کے تمام معاملات جھوٹ پہ ہو، جب غلامی پہ ہو، جب آپ کسی اور کے الاکار بنتے ہو، جب ڈالروں کے لیے آپ کام کرتے ہو، تو پھر آپ اس کو شکست نہیں دے سکتے۔ اس کا ایک ہی طریقہ ہے اور میں سولوشن بھی آپ کو دیتا ہوں۔ ہوا کیا، پھر میں نے 2 سوال اور پوچھے کہ کیا آپ نے امریکہ ریجیم کے آپریشن میں کوئی یہ وعدہ بھی ہوا ہے کہ آپ کا ایئر سپیس ایک دفعہ پھر استعمال ہوگا، کیونکہ عمران خان نے تو ایبسولوٹلی ناٹ کہا تھا، 400 ڈرون حملے آپ کے ٹائم پہ ہوئی تھی، عمران خان نے کوئی اجازت نہیں دی تھی، لہٰذا ایئر سپیس استعمال کرنے کی کوئی کمٹمنٹ ہوئی ہے یا استعمال ہو چکا۔ دوسرا کہ کیا امریکہ کو اڈے دینے کی آپ کا کوئی معاہدہ ہوا ہے یا ہونے جا رہا ہے۔ وجہ کہ امریکہ کبھی بھی یہاں سے نکلتا نہیں، یہاں پہ گلگت بلتستان میں نے اس وقت کہا تھا کہ سی پیک کا دروازہ ہے، چائنا کو روکنا ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کا رشیا، پھر آپ کی طاقت ہے، پھر یہاں پہ اپنا اثر رسوخ قائم رکھنا، تو یہ تمام چیزیں شروع ہو گئی۔ پھر جب یہ سوال پوچھے تو ایئر سپیس کا اور ڈرون حملوں کا بھی سوال پوچھا، اڈوں کا بھی سوال پوچھا، اس کا جواب نہیں دیا گیا، بلکہ انٹیریئر منسٹر ٹی وی پہ آتا ہے اور آئی ایس پی آر کی طرف سے ایک پریس ریلیز جاری ہوتا ہے۔ آئی ایس پی آر پریس ریلیز میں کہتا ہے کہ یہ پروپیگنڈا ہے اور حالات بالکل ٹھیک ہے۔ انٹیریئر منسٹر کراچی میں کھڑے ہو کے
कराची में खड़े होकर कहता है कि झूठ है, प्रोपेगेंडा है, अमन व अमान के हालात ठीक है। लेकिन जब हमने सरगर्मियां देखी तो मैं वाज़ेह तौर पे उस वक्त भी पैगाम दे चुका था और आज भी दे रहा हूं, न हमने इनकी ट्रैप में आना है, न उनकी ट्रैप में आना है, न हमने इनके लिए इस्तेमाल होना है, न उनके लिए इस्तेमाल होना है। लेकिन जो स्वात मलाकन डिवीजन खैबर पख्तूनख्वा हमने अपने हाथों से बनाया था, जो हमने अमन हासिल किया है, हम अपनी नजरों के सामने किस तरह उसको तबाह होता देख सकते हैं। तो हम तो आवाज उठाएंगे। हुकूमत ने साथ नहीं दिया, फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर, ISPR सब ने कहा कि प्रोपेगेंडा है, किसी ने साथ नहीं दिया। हमने क्या किया? हमने मलाकन डिवीजन के लोगों के पास गए, लाखों की तादाद में लोग आए, लोगों ने एक पैगाम दिया कि हम किसी की जंग में हिस्सा नहीं बनेंगे, हम किसी के लिए ईंधन के तौर पे इस्तेमाल नहीं होंगे, आप अमेरिका के गुलाम होंगे, डॉलर के गुलाम होंगे, हम नहीं होंगे। और फिर क्या होता है मेरे पाकिस्तानियों? फिर उसके बाद राब्ता होता है। 12 अगस्त को कहा जाता है कि 48 घंटे में ये वापिस चले जाएंगे, चले जाते हैं, लेकिन सितंबर के पहले हफ्ते में फिर आ जाते हैं। तो क्या मैं सवाल नहीं पूछूंगा कि गए कैसे, आए कैसे? और फिर मीडिया से भी सवाल करता हूं, मेरा मीडिया, मैं मीडिया से भी सवाल करता हूं। उस वक्त क्या है कि जब मैं ये बात कर रहा था तो मैंने मीडिया को 10 दफा मुखातिब करके कहा था कि याद रखिएगा, जब हम मुजरिमों की फेहरिस्त तैयार करेंगे तो उसमें सिर्फ ये हुक्मरान नहीं होंगे जो डॉलरों की पूजा पे हमारा सौदा करते हैं। उस मुजरिमों की फेहरिस्त में पाकिस्तान का मीडिया भी मेरा मुजरिम होगा। इसलिए होगा कि आपके लिए खबर ये होगी कि फला जगह में धमाका हुआ, इतने जनाजे उठाए गए, आपके लिए जनाजा, आपके लिए एम्बुलेंस में लाश और किसी के हाथ और पांव जो कटे हुए हो, वो आपके लिए खबर होगी। मेरे लिए खबर ये है कि किसी ने मेरे घर में घुसने की कोशिश की, मैंने उनको भगा दिया, मेरे लिए ये खबर है। मेरे लिए खबर ये नहीं है कि जब मेरा जनाजा उठेगा, जनाजा रोको, साथ दो, नहीं दिया। लेकिन फिर क्या होता है, मुझे पता था, मैंने ये भी कहा था कि आप इसका तय, लेकिन साहब को तो जब आपकी सोच ये हो मुल्क की कि हमने साउथ पंजाब में इलेक्टेबल्स को इकट्ठा करना है, हमने बलूचिस्तान में वो जो लोग हैं उनको साथ मिलाना है, और खैबर पख्तूनख्वा में कुछ भी करे इमरान खान का मुकाबला नहीं है, लिहाजा इनको और उनको लड़ाओ, बीच में किसी और को जगाओ और बात करो। यार शर्म करो यार। जब इसके ऊपर पॉलिसीज हो तो आप कर सकते हैं। और फिर ब्लेम किसके ऊपर डाले? 10 साल से तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है। हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा क्या कर रही थी? तो बॉर्डर मुझे दो तो मैं बता दूंगा कि मैं क्या कर रहा था। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत आपको अमन दिया था, खुशहाली दी थी, ट्रेड दिया था, रोजगार दिया था, सेहत कार्ड दिया था, टूरिज्म का फरोग दिया था, दिया है, देते रहेंगे। लेकिन बीच में ये जो डर्टी गेम्स होते हैं, किसी के लिए अमेरिका के लिए पाकिस्तान को इस्तेमाल किया जाता है, ये हमारे लिए मसला है। फिर मलाकन डिवीजन में सितंबर में फिर आ जाते हैं, फिर लाखों लोग निकलते हैं, फिर हमारे हालात ठीक हो जाते हैं। जब हालात ठीक होते हैं तो मैं और गम में इजाफा हुआ। गम में इजाफा कैसे हुआ? मीडिया तो खामोश है, क्योंकि उनको तो जब तक जनाजा नहीं निकलेगा, उनको तो दुख ये है कि इन्होंने जिसका हमारे साथ कोई लेना देना नहीं होता, आप उनको दानिशवर कह के बिठा रहते हैं। उनका तो सीजन चल रहा होता है जब धमाका होता है, तो सीजन वालों को क्यों बिठाते हो? असल लोगों के पास जाओ यार, उनकी बात करो। और ये एक बात की जाती है ना कि स्वात वाले मलाकन डिवीजन वाले ने बड़ा काम किया। मैं कंक्लूड कर रहा हूं बस 2 जुमले, क्योंकि मैं वो खान साहब की स्पीच का टाइम देख रहा हूं, तो इसलिए 2-3 मिनट आगे कर रहा हूं। तो फिर उसके बाद जब ये हुआ और सितंबर में फिर हमने, अल्लाह का शुक्र है कि लोग खड़े हो गए, लाखों की तादाद में खड़े हो गए। तो दुख किस चीज का हुआ कि जो तहरीक हमने उठाई, लोगों को शऊर दिया, और दुनिया की तारीख में, पाकिस्तान की तारीख में नहीं, दुनिया की तारीख में पहले आपको ये मिसाल नहीं मिलेगी कि आपने बगैर हथियार उठाए, आपने इतनी बड़ी दहशतगर्दी की लहर जो आने वाली थी उसको शिकस्त दी होगी। इसके ऊपर अब केस स्टडी है, ये कभी आपको ये इसकी मिसाल नहीं मिलती। लेकिन दुख ये है कि जिस पे वो नाराज थे, ये वाली भी मुझसे उसी पे नाराज है। वो भाई तो मैंने तो अमन बरकरार किया अपने लोगों के साथ खड़े होके, तो वो तो नाराज है, तो समझ आती है, तो आप भी क्यों नाराज हो यार? आपको समझ आती है इस चीज की? मुझे तो नहीं आती। तो अब एक तरीका और है इसको रोकने का कि जिस तरह वजीरिस्तान वाले इस वक्त सड़कों पे हैं, बनू वाले सड़कों पे हैं, तो हम हर पाकिस्तानियों को कहते हैं कि आप भी निकलो, इनके साथ खड़े हो जाओ। हम किसी के खिलाफ नहीं है, मुल्क हमारा है, घर हमारा है। अल्लाह ना करे अगर धमाके होंगे ना, या फिर बेघर होंगे,
तो हम तो भुगत चुके हैं। हमारे साथ जो होना था, घर लगने थे लग चुके, तबाह होने थे तबाह हो चुके। हमने तो अर्सी बात अमन दे के हम तो नहीं करने देंगे किसी को अपना अमन तबाह, चाहे किसी की जितनी भी बड़ी लड़ाई हो, जितनी भी रिजीम चेंज ऑपरेशन हो, जितनी भी डॉलरों की वादे हो। कुछ करो यार, गुलामी करनी है करो, अमेरिका के डॉलर की पूजा करनी है करो, उनके गुलाम बनना है बनो, लेकिन मेरी कीमत पे नहीं, मेरे लोगों की कीमत पे नहीं, ये हम नहीं करने देंगे। और फिर उसके साथ एक और आखिर चीज, जो वज़ीरिस्तान बनू वाले खड़े हैं, मैं उनकी न सिर्फ हिमायत करता हूं, बल्कि मैं 3 दिन से रोजाना की बुनियाद पर अपने कारकुनान को भी कहता हूं कि पार्टी लाइन से हटकर नजरिए बाद में, अपने अपनी लीडर पसंद बाद में, अपने पसंद नापसंद बाद में, अमन होगा तो मेरा और आपका एक है, अल्लाह ना करे जनाजा उठेगा तो मेरा और आपका एक है, घर उजड़ेगा तो मेरा और आपका एक है, बेघर होंगे तो मेरा और आपका एक है। हमने इकट्ठे रहना है। ये जो 5, 10, 15, 20 लोग जो बंद कमरों में हमारे फैसले करके बाहर दुनिया से करते हैं, इन्होंने कुछ नुकसान इनका नहीं होना, लिहाजा इकट्ठे सबने खड़े होना है। और दूसरा, बस मैं अपनी बातें इस पे खत्म करते हुए ये कहता हूं कि इस वक्त आप देखें कि वज़ीरिस्तान बाटोर से लेके बलूचिस्तान, गवादर और फिर गिलगित बल्तिस्तान, फिर वही सवाल आता है कि रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद ऐसा क्या हुआ? अमेरिका से कुछ कमिटमेंट्स, अमेरिका की मर्जी पे हुकूमत में आना, अमेरिका को खुश करने के लिए इक़दाम करना, और जो इमरान खान ने अशरफ गनी के टाइम पे, जो कि एंटी अफगानिस्तान का विजिट ही क्यों नहीं होता? क्या वजह है? पूरी दुनिया में मार्को पोलो बना हुआ है, अफगानिस्तान आप क्यों एंगेज नहीं करते? बात क्यों नहीं करते? आप क्यों नहीं मिलते? जब आपकी अमन और तरक्की की मिसाल दी जाती तो, और स्वात मलाकन डिवीजन, सीएम साहब यहाँ पे बैठे, जितना इन्होंने वहां पे काम किया है, तो मुझे याद है इनकी खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत थी, वज़ीर आला तो ये अभी भी है, लेकिन जब हमारी वफाक में हुकूमत थी तो ये इदारे भी बुला के मुझे कहते थे कि जो स्वात सक्सेस स्टोरी है, इसके ऊपर आप हमें ब्रीफ करें और बताएं कि किस तरह हम ये मॉडल रिफ्लेक्ट कर सके बलूचिस्तान में। और बलूचिस्तान में भी वो सिलसिला हमने शुरू किया। क्या वजह है कि आज बलूचिस्तान में दो जो मुख्तलिफ हैं, एक बलोच वाले हैं और दूसरे जो उस साइड वाले हैं, वो दोनों भी आपके खिलाफ इकट्ठे होकर ऑपरेशन क्यों कर रहे हैं? आज पाकिस्तान की हिमायत करने वाली अफगानिस्तान की हुकूमत के खिलाफ आपकी तरफ से बयानात क्यों आते हैं, एंगेजमेंट क्यों नहीं है? आज अपने लोग जो आपसे सवाल करते हैं, आवाज उठाते हैं, उनको आप एंगेज क्यों नहीं करते, आवाज क्यों नहीं उठाते? जब आपको निशानदेही की जाती है तो आप टीवी पे आके ये क्यों कहते हैं कि प्रोपेगेंडा है, झूठ है? जो बंदा, मतलब सिंपल है ना, जंग रोकना, अमन बरकरार रखना जरूरी है, कि जब एक दफा खराब हो जाए और मारना जरूरी है, तो नुकसान क्यों करते हो? तो फिर साथ में ये चीज है। तो हमारी ये सवाल है, ये हमारा मौकफ है, और हम क्या करेंगे इसके साथ। एक तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जिस तरह डील कर रहे हैं, अब टीवी पे तफसीरी भी शुरू हो गए, किधर है खैबर पख्तूनख्वा, वो में ये ऐसी चस्के ले रहे हैं, मतलब जिन्होंने जो करना है ना, इन्होंने जो कमिटमेंट्स दिया उसी के ऊपर जा रहे हैं। तो असल चीजों के ऊपर हमने फोकस करना है, और इलाज इसका एक है। मलाकन डिवीजन और स्वात में जिस तरह लाखों लोग निकले और उन्हें मिसाल दी कि भाई हम ये चीजें नहीं चाहते, हमारे सरों पे बात ना करो, फिर कहते कि ना उन्होंने स्वात वालों ने वेलकम किया था, स्वात वालों ने कभी किसी को वेलकम नहीं किया था, उस वक्त हम बच्चे थे, अब समझ आ गई है, अब समझ आ गई है, किसी ने वेलकम नहीं किया था। तो हमारे सरों पे ये गेम है, आप मत खेलो, पाकिस्तान को आगे बढ़ने दो, पख्तूनख्वा को आगे बढ़ने दो, हमारे कबाइली अजला को बढ़ने दो, वज़ीरिस्तान को जीने दो, बाजोड़ को जीने दो, कुरम को जीने दो, औरंगजेब को जीने दो, हमारे मोमन और खैबर को